Greetings of the day, student. So last time we discussed if else, simple if else statement, like we have one condition or multiple conditions that we have to check, but we discussed only about single condition. There can be only if statement, where if the condition is true, then you execute set of statements, and there can be if else statements, that if condition is true, then you execute set of statement inside if block, and if it is false, this is if block, and if it is false, then execute statement inside else block. That is other part of the thing. So you have conditions for, statements for both conditions, true condition and false condition. Or for if, there is only one thing, that you have statements for only condition if that is true. Okay, moving forward, we discuss some examples. Right now, we today want to discuss nested if else. Nested if else means if you put condition inside a condition. Let's say I want to check multiple things. If I want to buy a pen, I want to check two things. First of all, if it is below 20 rupees, let's say I want to buy an economical pen, so I'll check if it is below 20 rupees. Then if it is below 20 rupees is first condition. If it is true, then only I'll go inside the second condition or that if statement. If there is below the 20 rupees, I'll check the second condition, that I want a black pen. So if it is has a blue black ink, then only I will buy it, otherwise I'll not buy it. So if it is also true, then I'll go inside this. If that pen is not below 20 rupees, I'll come inside else block. So it is similar to that. So if you want to check condition after condition, that is known as nested if else. So condition inside condition, if else inside if else, as simple as that. Okay, so any level or degree of nesting is possible in if else. Any level यानी कि at correct position, let's say आप 100 या 200 लेवल तक अगर आप if else का नेस्टिंग करते जाते हैं तो that is possible. कंप्यूटर आपको सही जवाब देगा. बाद में ऑब्वियसली एडिटर ही आपको एडिट नहीं करने देगा, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो प्रैक्टिकल यूज के लिए जितना नेस्टिंग पॉसिबल है उतना नेस्टिंग अवेलेबल है, या फिर आपका प्रोग्रामिंग जो है वो गलत है, ऐसा बोल सकते हैं. ओके, सो नेस्टिंग उतना ही करें जितना पॉसिबल है, जो हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल है वो इजीली प्रोग्रामिंग सिंटैक्स में या आपके एडिटर में अवेलेबल होगा. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमें 3 नंबर में से लार्जेस्ट फाइंड करना है. मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है. ओके, सो 3 नंबर है ABC. अज्यूम करेंगे कि हमारे पास ऐसा पुराना वेइंग स्केल है जहाँ पे हम 2 ही ऑब्जेक्ट्स पुट कर सकते हैं. ABC को आप कोई भी 3 ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं. लेट्स से दोस 3 आर 3 पीपल हु आर लुकिंग सिमिलर इन वेट. बल्कि उनके वेट में फर्क है पर दिखने में सिमिलर है, कि जो हम देख के डिसाइड नहीं कर सकते. राइट, so A's value या A's weight is 35 and B's weight is 18. So we will put both of them on this thing, A and B. Let's say if I put A and B here, तो पहले हम चेक करेंगे कि A और B में से कौन बड़ा है. अगर A B C हमारे पास 3 नंबर है तो पहले हम तीनों को नहीं चेक कर सकते वेइंग स्केल से. So I'll check only 2 numbers, A and B. If A is higher, तो मैं A को साइड में रखूंगा. ओके, दैट A is a higher number. और अगर A हायर नहीं है तो मैं B को साइड में रखूंगा कि B इज हायर नंबर. ओके, उन दोनों में से जो जीतेगा उसकी कंपटीशन किसके साथ होगी? ऑब्वियसली C के साथ. सो अगर इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे कौन जीतेगा? A जीतेगा. सो बाद में किन दो वैल्यूज की कंपैरिजन होगी? A और C. सो हम किस साइड होंगे? लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, क्योंकि ये कंडीशन गलत है. ओके, B इज नॉट ग्रेटर देन A. यहाँ पे पूछा गया था कि A ग्रेटर देन B है, तो यस A ग्रेटर देन B है, तो हम इस साइड लीन कर रहे हैं. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि A ग्रेटर देन C है, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं 35 और 47. A ग्रेटर देन C नहीं है. अगर A ग्रेटर देन C नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रिंट होगा, यहाँ इमेज है, ये इमेज में मिस्टेक है. हियर इट शुड बी प्रिंटेड दैट C इज द हाईएस्ट नंबर. A हाईएस्ट नंबर नहीं है. ओके, बिकॉज A ग्रेटर देन C नहीं है एंड C इज द हाईएस्ट नंबर. B और इन दोनों में कंपैरिजन में कौन सा नंबर कॉमन है? C. पर यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, दे हैव रिटन B हियर, इट शुड बी C हियर एंड B हियर. ओके, सो इस तरीके से हम नेस्टेड इफ एल्स को कंपेयर कर सकते हैं. प्रोग्रामिंग में कैसे लिखेंगे? प्रोग्रामिंग में कुछ इस तरीके से लिखेंगे. ओके, हम अभी इसका प्रोग्राम लिखने वाले हैं. यहाँ पे 3 इंस्टेंस है, तीनों इंस्टेंस डिस्कस करते हैं. A ग्रेटर देन B है
तो क्या करेंगे, ए और सी को कंपेयर करेंगे। ए ग्रेटर देन बी है मतलब ए बड़ा नंबर है, फाइंडिंग लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम है। तो हम ए और सी को चेक करेंगे कि ये तो बड़ा है ही, तो ए विनर है, ए और बी में से ए विनर है, तो हम ए और सी को कंपेयर करेंगे। अगर ए और सी में से ए विनर है तो ए लार्जेस्ट है, अगर ए और सी में से सी विनर है तो सी लार्जेस्ट है। लेट्स से ये कंडीशन गलत है, ये कंडीशन गलत है तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे। ये कंडीशन गलत का मतलब क्या हो गया कि ए ग्रेटर देन बी नहीं है, इसका मतलब है कि बी बड़ा नंबर है। तो हम किसको कंपेयर करेंगे, बी और सी को। बी और सी को कंपेयर कर रहे हैं, अगर बी बड़ा नंबर है तो बी लार्जेस्ट हो गया क्योंकि बी ऑलरेडी ए से जीत चुका था, अब दूसरी बार सी से भी जीता है तो बी इज द लार्जेस्ट। अगर बी है वो सी से छोटा है या बी है वो सी से डिफीट हो जाता है तो सी इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। अब 3 इंस्टेंस के लिए क्विकली देखेंगे, ए बी एंड सी। ओके, ए 35 है और बी 18 है, तो पहले हम हमेशा ए बी कंपेयर करते हैं, कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो हम कौन से ब्लॉक में रहेंगे, इस ब्लॉक में रहेंगे। ओके, फिर ए और सी कंपेयर हुआ, 35 और 47 कंपेयर हुआ, कौन बड़ा हुआ फाइनली, सी। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, सी इज द लार्जेस्ट नंबर फॉर इंस्टेंस 1। बाद में इंस्टेंस 2 पे आते हैं, 11 और 38 ऑलवेज पहले कंपेयर होंगे, यानी कि ए और बी कंपेयर होंगे, कौन बड़ा है, बी बड़ा है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इंस्टेंस 2 में। इंस्टेंस 2 में यहाँ पे आते ही अब बी और सी की कंपैरिजन होगी कि 18 और 3 में से कौन बड़ा है। तो 18 और 3 में से ऑब्वियसली कौन बड़ा है, बी इज द लार्जेस्ट नंबर, सेकेंड टाइम ये प्रिंट होगा। ओके, अगेन ए बी की कंपैरिजन होगी, कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो थर्ड इंस्टेंस में हम कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। ओके, सो ए बड़ा है, अगेन ए और सी की कंपैरिजन होगी। ओके, तो ए और सी में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली ए बड़ा है, तो ए इज द लार्जेस्ट नंबर। हमने तीनों बार एक एक नंबर डिस्कस कर लिया कि कौन लार्जेस्ट है। इसको क्विकली प्रोग्रामिंग एग्जांपल से देख लेते हैं। ओके, आई स्विच टू द कोड ब्लॉक्स एडिटर, कंसोल एप्लीकेशन। ओके, सी प्रोग्रामिंग। मुझे इफ एल्स का प्रोग्राम लिखना है, सो आई टाइप इफ एल्स एंड इफ एल्स प्रोग्राम 3। सो इफ एल्स 3 इज माय प्रोजेक्ट। हम पीछे डॉट सी नहीं लगाते हैं क्योंकि हमारे अंदर मेन डॉट सी नाम की फाइल बनती है। मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी है, इफ एल्स 3 मेन डॉट सी फाइल में ओपन करता हूँ। जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए आई एम रिमूविंग इट। ओके फाइन। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, 3 नंबर एज्यूम करना है। तीनों नंबर अभी के लिए हम क्या रख रहे हैं, तो प्रोग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए इंटीजर रख रहे हैं। ओके, मैंने फॉन्ट्स की साइज बढ़ा दी है, सो यू कैन सी इट। ए बी सी, तीनों नंबर में किससे ले रहा हूँ, यूजर से ले रहा हूँ। सो प्रिंटफ यूजर के लिए मैसेज टाइप कर देते हैं कि एंटर दी वैल्यू, sorry for that, enter the value of a comma b comma c। ओके, तीनों की वैल्यू एंटर करनी है और हमें उसको स्कैन स्टेटमेंट से स्कैन करनी है। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मल्टीपल वैल्यूज को कैसे स्कैन करते हैं। हाउ डू वी स्कैन मल्टीपल वैल्यूज, वी जस्ट राइट डाउन मल्टीपल %d और %f इनसाइड scanf स्टेटमेंट। अगर scanf आपको समझ में नहीं आया है तो I suggest you revise the previous videos before you watch this. Okay, so हमने 3 नंबर स्कैन कर लिए ए बी सी। अब हम इफ एल्स के अंदर घुस जाते हैं। पहले हम किन दोनों को कंपेयर करेंगे, ए और बी को। ए ग्रेटर देन बी भी लिख सकते हैं, ए लेस देन बी भी लिख सकते हैं। हमारा प्रोग्राम है लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने का, इसलिए अगर ए ग्रेटर देन बी सही है तो कौन विनर है, ए विनर है। इसीलिए आगे जाके अंदर हम किसको कंपेयर करेंगे, ए को कंपेयर करेंगे। ओके, सो अंदर दूसरी कंडीशन लिखते हैं कि अगर ए है वो सी से भी बड़ा है, इसका मतलब है ए है वो 2 बार विन हो चुका है, ए ग्रेटर देन बी भी सही है तो ही वो इफ के अंदर आएगा, और ए ग्रेटर देन सी भी सही है तभी वो यहाँ पे आएगा। सो हम प्रिंट एफ के अंदर लिख देंगे ओके दैट %d is largest and named as a। %d यानी उसकी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू किसकी आएगी, ए की आएगी। ओके, और हम सबके पीछे ऑब्वियसली स्लैश एन लगा देंगे इफ इट इज नीडेड।
ये एक ही सेंटेंस है तो मुझे ये ब्रैकेट्स हटाने हैं तो मैं हटा सकता हूँ ऑब्वियसली। ओके, सो अगर ए है वो सी से बड़ा नहीं है तो क्या होगा? तो बहुत सिंपल होगा, सिंपल चीज है। सिंपल चीज क्या है? अगर ए सी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली कौन बड़ा है? सी बड़ा है। सो आई विल जस्ट प्रिंट दैट, I'll just print that, yes, I'll print that percentage d is the largest and named as c, उसका नाम है c वेरिएबल। फाइन। अगर अब हम दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, अगर इफ a ग्रेटर देन b है वो गलत है तो वो कौन से पार्ट में जाएगा? एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में जाएगा उसका मतलब एक चीज क्लियर है कि a है वो छोटा है और b है वो बड़ा नंबर है, मतलब b विनर है। तो अगर b विनर है तो हम किसको कंपेयर करेंगे? b को और c को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे अगर b की वैल्यू ज्यादा है। और अगर b की वैल्यू ज्यादा है तो मैं सिंपली printf में क्या लिखूंगा, और आई हैव कॉपीड दैट स्टेटमेंट ऑलरेडी। ओके, सो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैं b के अंदर क्या लिखूंगा? परसेंटेज d इज द लार्जेस्ट एंड इट इज नेम्ड एज b। ओके, और सिमिलरली मैं else के अंदर लिखूंगा कि b इज ऑल्सो नॉट लार्जेस्ट। अगर b भी बड़ा नहीं है, b ग्रेटर देन c गलत है। a है वो b से बड़ा था, a है वो b से छोटा था, इसीलिए हम इसमें आए थे। कौन सी कंडीशन गलत थी? ये कंडीशन गलत थी, तभी हमने यहाँ से लेके यहाँ जंप किया था, ये पूरा स्किप करके। इसका मतलब b बड़ा है, और अगर b है वो c से भी बड़ा है तो b इज द लार्जेस्ट। और अगर b c से बड़ा नहीं है तो कौन लार्जेस्ट हो गया? ऑब्वियसली c इज द लार्जेस्ट नंबर। सो यहाँ पे तीनों नंबर चेक हो रहे हैं, प्रोग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। I'll just quickly run it and see if there is any error. Okay, seems like there is no error. It is being compiled. प्रोग्राम रन हो चुका है। मैं यहाँ पे वैल्यूज दे रहा हूँ 34, 45 and 22. Okay, so obviously b is the largest, 45 is the largest and named as b. आ गया कि बीच वाला b वेरिएबल वो सबसे बड़ा है। अगेन एक बार रन कर लेते हैं, बिल्ड एंड रन। सिंपल वैल्यू देता हूँ 5, 4 और 3। Okay, so 5 is the largest number and named as a. a भी largest आ रहा है। Okay, so simple nested if else है। एक if है, उसका else यहाँ पे है, और if के अंदर हमने if else लिखा है, और else के अंदर भी हमने क्या लिखा हुआ है? if else लिखा हुआ है। that is nested if else। ये लार्जेस्ट नंबर का प्रोग्राम है। अगर मैं आपको स्मॉलेस्ट नंबर का प्रोग्राम दूं तो आप क्या चेंज करेंगे? बहुत ही सिंपल है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे कि a लेस देन b है कि नहीं। ओके, ए लेस देन बी है कि नहीं चेक करेंगे। अगर ए छोटा है तो ए विनर है। ए छोटा है तो विनर क्यों है? क्योंकि हम मिनिमम नंबर फाइंड कर रहे हैं। तो फिर वापस हम चेक करेंगे कि अगर ए है वो सी से भी छोटा है, ए है वो बी से छोटा है, तभी हमारा प्रोग्राम इसके अंदर आएगा, इफ के अंदर। ओके, और चेक करेंगे कि वो सी से भी छोटा है, तो वो कौन सा नंबर है? स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, अगर ए है वो सी से छोटा नहीं है, इसका मतलब है सी छोटा है, तो कौन छोटा नंबर है? सी है वो स्मॉलेस्ट नंबर है। सिमिलर चेंजेस कहाँ पे आएंगे? सिमिलर चेंजेस यहाँ पे आएंगे। ठीक है, b लेस देन c होगा तो b इज द स्मॉलेस्ट, और अदरवाइज c इज द स्मॉलेस्ट। ओके, आप स्मॉलेस्ट वाला प्रोग्राम समझ गए हैं, सो आई सजेस्ट कि एक बार वो आप खुद से ट्राई करें, एंड आई विल डायरेक्टली जंप टू माय ppt। फाइन। सो देन वी हैव मल्टीपल if else और if else ladder. We'll get back to this topic in next video. Till now you just try the program. Okay, thank you. Greetings of the day, student. So last time we did if else or multiple if else, or we can say let's say nested if else, if else के अंदर if else. Okay, finding largest number वाला program किया था. Hope you have understood it and hope you have tried it at home, because these are very important concept. लगते बहुत simple है but बहुत important concept है. Okay, so please try that at home. Fine. Multiple if else और ladder if else. Okay, लैडर इफेक्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका शेप है लैडर की तरह। एज यू कैन सी, हम जैसे स्टेयरकेस उतर रहे हैं वैसा इसका शेप है। ओके, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या करता है, ये उसकी सिंटेक्स है। दिस इज इट्स सिंटेक्स, इट इज लैडर इफेक्ट्स। यानी कि मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो, अगर सिंगल कंडीशन चेक करनी है तो हम सिंगल इफ एंड एल्स यूज करते हैं,
बट कई बार हमें प्रोग्राम में मल्टीपल कंडीशन चेक करनी होती है, जैसे कि इफ कंडीशन 1 ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन 1 ट्रू नहीं है तो वो कंडीशन 2 पे आएगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, 2 कंडीशन सही नहीं है तो 3 पे आएगा और स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, एंड सो ऑन। अगर हम सारी कंडीशंस चेक करते हैं और उसमें से कोई भी सही नहीं है तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट होगा, जिसे हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट कहते हैं। अगर कोई भी कंडीशन सही नहीं है तो उसको फ्लो चार्ट से समझते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, कंडीशन 1 सही है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करो और प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दो। ओके, ध्यान से सुनेंगे, सारी कंडीशंस चेक नहीं होंगी, जहां पे कंडीशन सही आएगी वहां से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ही सही है तो फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट करके वो इस पाथ को फॉलो करेगा, ओके, एंड देन इट विल टर्मिनेट द प्रोग्राम और इट विल एग्जीक्यूट द प्रोग्राम आफ्टर मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट्स। ओके, मल्टीपल इफ एल्स के बाद जो भी प्रोग्राम आता है वो उसे एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन सही 1 नहीं है तो ही वो कंडीशन 2 पे जंप करेगा और कंडीशन 2 चेक करेगा। अगर कंडीशन 2 सही हो जाती है तो उसके बाद वाले कोई भी स्टेटमेंट इफ एल्स लैडर के एग्जीक्यूट नहीं होंगे। प्रोग्राम के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे पर इफ एल्स लैडर का जो ब्लॉक है, ये इफ एल्स लैडर का ब्लॉक है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी इफ एल्स का ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिर्फ जो कंडीशन सही है वही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और सारी कंडीशंस हम देख रहे हैं वैसे लाइन में चेक होंगी, 1 बाय 1 इन सीक्वेंस। ओके, पहले हमने कंडीशन 1 चेक की है, फिर कंडीशन 2 पे आए हैं, अगर ये सही है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करके तो प्रोग्राम को यहाँ से टर्मिनेट कर देगा। अगर वो भी गलत है तो स्टेटमेंट 3 पे जाएगा, स्टेटमेंट एंड पे 1 बाय 1 करके। अगर सारी कंडीशंस गलत है तो हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा ब्लॉक रख रहे हैं, स्टेटमेंट 5, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे एल्स। ओके, उसको हम एल्स कहते हैं। अगर सारी कंडीशंस जो है वो अपर वाली कंडीशन गलत है तो वो एल्स के इनसाइड का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट और लैडर। उसका हमने प्रोग्राम देखा था, कौन सा प्रोग्राम देखा था, कैलकुलेट इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, हमने उसका फ्लो चार्ट भी ड्रॉ किया था, राइट। कुछ रूल्स थे, 50 यूनिट्स और 0.5 रुपीज पर यूनिट एंड सो ऑन, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, सी दैट वीडियो। ओके, उसका ये फ्लो चार्ट है कि अगर 50 यूनिट से कम है तो ये पाथ फॉलो करिए और इफ एल्स के लैडर के बाद वाले जगह पे आ जाइए। अगर यूनिट 100 से कम है तो ये पाथ फॉलो करिए और ये पाथ फॉलो करके फिर अगेन नीचे आ जाइए, राइट। अगर यूनिट 200 से कम है तो फिर ये पाथ फॉलो करिए, राइट। अगर यूनिट 100 है तो ये कंडीशन सही नहीं हो सकती, जैसे हमें पता है। ओके, ये कंडीशन 100 यूनिट से कम है तो सही नहीं हो सकती, हाँ सही नहीं हो सकती है क्योंकि वो 50 से कम नहीं है। और अगर वो 50 से कम नहीं है तो 50 से 100 के बीच में है, वो यहाँ पे आएगा, बाद में वापस एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसको प्रोग्राम से समझते हैं। आई हैव रिटन अ प्रोग्राम, सो विल जंप इनटू कोड ब्लॉक्स। मैंने फ्लोट वेरिएबल कुछ डिफाइंस किए हैं यहाँ पे, अब ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इंटीजर मेन str.h भी नो दैट, कुछ फ्लोट वेरिएबल डिस्कस किए हैं, यूनिट्स डिस्कस किए हैं, कितने यूनिट्स यूज हो रहे हैं, उसका यूनिट चार्ज कितना है, उसका एफ चार्ज कितना है। एफ चार्ज क्या है, 0.40 इंटू यूनिट चार्ज, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ओके, तो इसका गवर्नमेंट टैक्स कितना है, मीटर रेंट कितना है, टोटल बिल कितना है। सो पहले मैं यूनिट्स ले रहा हूँ यूजर से, ये दोनों यूजर के स्कैनएफ स्टेटमेंट्स है, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो आई जस्ट जूम इन, राइट। फिर इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा इफ एल्स जो लैडर है वो पार्ट इतना है। ओके, सो मैं जब भी कहता हूँ कि इफ एल्स लैडर में से हम बाहर आ जाएंगे, इफ एल्स लैडर एग्जीक्यूट नहीं होगी तो हम इतने ब्लॉक से बाहर आएंगे, पूरे प्रोग्राम से बाहर नहीं आ जाएगा, हमारा पूरा प्रोग्राम एग्जिट नहीं हो जाएगा। ओके, इसमें कंडीशंस कितनी है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। अगेन एल्स के बाद कंडीशन नहीं आती है, उसके बाद सेमी कॉलन भी नहीं आता है, कहीं भी आप देख सकते हैं सेमी कॉलन उसके अंदर के स्टेटमेंट्स में आता है, जैसे कि ये स्टेटमेंट्स है। और मैंने इसमें ब्रैकेट्स नहीं रखे हैं, जैसे कि हम ऐसे ब्रैकेट्स रख सकते हैं, राइट। मैं इसको कट करके कहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ओके, इस तरीके से। सो हम हर एक ब्लॉक्स को क्या दे सकते हैं, ब्रैकेट्स दे सकते हैं। पर ब्रैकेट क्यों नहीं दिए हैं, ये रूल हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर एक ही स्टेटमेंट है इनसाइड द ब्लॉक तो हम ये ब्रैकेट्स अवॉइड कर सकते हैं। ब्रैकेट्स दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एरर नहीं है। जैसे कि अभी मेरे पास एक ही स्टेटमेंट है तो ये एक स्टेटमेंट इफ का ही है। ओके, ये ऊपर वाला जो इफ है उसका, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास 3 कंडीशन, तो वो क्या करेगा, एक एक कंडीशन को लाइन में चेक करेगा। पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर ये सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और ये पूरे ब्लॉक को स्किप करके बाहर आ जाएगा। ओके, सो जो कंडीशन सही है उसके हिसाब से वो एग्जीक्यूशन करेगा। अगर वो कंडीशन गलत है तो वो नीचे आ जाएगा और ये वाली कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही है तो वो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और पूरे इफ एल्स ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। वो भी सही नहीं है तो वो थर्ड कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा। अगर थर्ड कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है तो सही है तो वो सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला। ओके, और बाद में वो कहाँ आ जाएगा, इफ एल्स ब्लॉक के बाहर आ जाएगा।
सिमिलरली अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन सही नहीं तो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके ऑब्वियसली इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है तो इफ एल्स लैडर ब्लॉक के बाहर आ जाएगा, तो इसे इफ एल्स लैडर कहते हैं। इफ एल्स लैडर है वो किसके सिमिलर है, एक दूसरा स्ट्रक्चर है इफ एल्स लैडर जैसा जिसे स्विच स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, वी विल लर्न दैट आफ्टर दिस, इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, सो एफ चार्ज यानी फ्यूल चार्ज। फ्यूल चार्ज कितना है, यूनिट चार्ज जो भी है हमारा पूरा यूनिट चार्ज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि यूनिट चार्ज अगर 50 यूनिट से कम है तो पर यूनिट हम 0.5 चार्ज लगाते हैं। अगर 50 यूनिट से ज्यादा है तो हम उसके दो पार्ट्स बनाते हैं कि पहले 50 यूनिट के 0.5 और 50 यूनिट के बाद जितने भी हमने यूज किए, जैसे 70 हो तो बाकी के 20 बचे, 50 यूनिट माइनस 50 उसको हम 0.75 चार्ज लगाते हैं, पर उसके लिए उसके यूनिट्स 100 से कम होने चाहिए। ठीक है, हम एक एक करके चेक करते हैं। ये कंडीशन में फर्स्ट नहीं रख सकता कि यूनिट्स लेस देन और इक्वल टू 100 है। मैं अगर ये कंडीशन फर्स्ट रखूं तो पहले ही वो कंडीशन सही हो जाएगी इफ इवन यूनिट्स आर 20। अगर सिर्फ मैंने 20 यूनिट्स यूज किए हैं और मैं ये कंडीशन फर्स्ट रखता हूँ तो वो कंडीशन सही हो जाएगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे अगर मैंने दोनों को एक्सचेंज करता हूँ तो। इसीलिए पहले वही कंडीशन रखें जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और जिस ऑर्डर में आपको चेक करनी है। अगर पहली कंडीशन सही हो जाएगी तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होकर वो लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, बस हमें इतना ही याद रखना है। क्लियर है, इसका लॉजिक ध्यान से समझिएगा। ये मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं जो सिंपल कैलकुलेशन स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं है इसमें। ये एफ चार्ज कैलकुलेट हो रहा है, फिर गवर्नमेंट टैक्स कितना है 0.10 इंटू यू चार्ज प्लस एफ चार्ज, ये सारी चीजें प्रोग्राम में दी हुई है। इफ यू जस्ट लुक एट द पीपीटी, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है। गवर्नमेंट टैक्स कितना है 15% ऑफ यूनिट चार्ज एंड फ्यूल चार्ज। सो मैंने कहा यहाँ पे 10% लिया हुआ है मेरे। ओके, डजेंट मैटर, 15% भी ले सकते हैं 10% भी ले सकते हैं। मीटर रन कितना है 25.0 है। टोटल कितना है यूनिट चार्ज प्लस फ्यूल चार्ज प्लस गवर्नमेंट टैक्स और मीटर रेंट। ओके, हमारा मीटर रेंट 25 है, 20 है। मैंने मीटर रेंट को यहाँ पे कितना लिया 25 लिया है, 20 ले सकते हैं। ओके, डजेंट मैटर, हम यहाँ पे सिंपल वैल्यूज चेंज करनी है। तो मैं इसको रन करके एक बार देख लेता हूँ। ओके, program is being compiled and if there is no error it will run। मैंने एरर लॉग्स को छोटा कर दिया है इसीलिए हमें पता नहीं चला। यस, देयर इज नो एरर, प्रोग्राम इज रनिंग। I think there is some mistake, I'll run it again. Just wait, enter the number of unit consumed. Yeah, it should ask me enter the number of unit consumed. Let me check the logs, I'll run it again. Yeah, now it is asking me enter the number of unit consumed. Let's say I have consumed 185 units. Okay, so मेरा बिल कितना आएगा 257 point something, 257 rupees, right? So that way you have to do this program for if else ladder for checking something। और if else ladder का एक अच्छा प्रोग्राम क्या हो सकता है, ग्रेड। मैं आपको एज एन होमवर्क दे रहा हूँ कि हम चेक करेंगे कि स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, आप उसके हिसाब से उसको ग्रेड असाइन कर सकते हैं। मार्क्स शुड बी बिटवीन 1 to 100। आप स्टूडेंट से मार्क्स लेंगे और चेक करेंगे कि अगर मार्क्स हैं वो किससे कम है। लेट्स से मार्क्स हैं वो लेस देन 35 है, इसका मतलब वो फेल है, तो स्टूडेंट को कोई ग्रेड असाइन करेंगे या हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखेंगे कि दैट स्टूडेंट हैज बीन फेल्ड और पास्ड, व्हाटएवर यू कैन अज्यूम। बट ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई दिस एट होम एंड गेट बैक टू मी विद द प्रोग्राम। ओके, हाउ डू यू फील और व्हाट आर द एरर्स, विल सॉल्व इट। नाउ जस्ट कमिंग बैक टू पीपीटी। सो हमने ये डिस्कस कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला। फिर आता है स्विच स्टेटमेंट। ओके, स्विच स्टेटमेंट क्या है, हम इसकी थियरी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक मल्टी चॉइस स्टेटमेंट है, एकदम सिमिलर टू इफ एल्स लैडर है। इसमें भी काफी सारी कंडीशंस होंगी, काफी सारे उसके ऑप्शंस होंगे। सॉरी, वन कंडीशन होगी और उसके काफी सारे ऑप्शंस होंगे। वो ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सही होगा वो एग्जीक्यूट होगा, पर उसमें और इफ एल्स में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है देखेंगे। ओके, सो ब्लॉक ऑफ द करेक्ट चॉइस विल बी एग्जीक्यूटेड। एक कंडीशन होगी, उसकी काफी सारी चॉइसेस होंगी, उसके काफी सारी प्रोबेबल आंसर्स होंगे। जो आंसर सही है वो वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। रिजेंबल विद इफ एल्स लैडर, बराबर, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है या डिफरेंस क्या है, इट विल जंप डायरेक्टली टू द करेक्ट कंडीशन। हम इस तरह से डायरेक्टली करेक्ट कंडीशन पे जंप नहीं करते हैं, ठीक है। सो रादर देन चेकिंग द कंडीशंस वन बाय वन, वो चेक कंडीशंस वन बाय वन चेक करता है, डायरेक्ट करेक्ट कंडीशन पे जंप करता है। ओके, उसमें हम चेक क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वेरिएबल दे सकते हैं या फिर हम एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं। ओके, डायरेक्ट वेरिएबल दे सकते हैं या फिर एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं। देखते हैं फिर स्टेटमेंट क्या होता है। उसका ब्लॉक कुछ इस तरीके से होता है कि स्विच
स्विच के बाद अंदर क्या आएगा, वेरिएबल या एक्सप्रेशन आएगा, कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू दे सकते हैं, वेरिएबल जो भी वैल्यू ले सकता है जैसे कि ओके। फिर हम एक 1 बाय 1 केस डिफाइन करेंगे। केस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, लेबल 1 जितनी है, अगर वेरिएबल की वैल्यू लेबल 1 जितनी है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कीजिए और वहां पे चीजों को ब्रेक करके बाहर आ जाइए। ब्रेक एक कीवर्ड है। ब्रेक किसके लिए यूज होता है, कोई भी लूप है या कोई भी ब्लॉक है उसमें से बाहर आने के लिए ब्रेक यूज होता है। ओके, सिमिलरली अगर उसकी वैल्यू 2 है तो वो डायरेक्टली 2 पे जंप करेगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 1 बाय 1 कंडीशन से वो चेक नहीं होंगी। ओके, कंडीशंस 1 बाय 1 चेक नहीं होंगी, कंडीशंस डायरेक्टली यहाँ से जंप करेगा कि 1 सही है तो 1 पे जंप करो, 2 सही है तो यहीं से 2 पे जंप करो, और नहीं तो डायरेक्टली केस n पे जंप करो, केस n सही है तो ठीक है। पर अगर इनमें से एक भी केस नहीं है तो ऑब्वियसली इफ एल्स लैडर की तरह हमें एक डिफॉल्ट ब्लॉक रखना पड़ेगा। हो सकता है कि यूजर है या कोई भी चीज है, केस है, वो आए ही ना। जैसे कि मैंने बोला है यूजर को कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 4 फॉर डिवीजन। अगर यूजर लेट से 8 एंटर करता है, ओके, सो कहाँ पे आएगा, वो एक डिफॉल्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में आएगा जहाँ पे मैं शो कर दूंगा कि यू हैव एंटर द रॉन्ग चॉइस, राइट। उसका फ्लो कैसा होगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन या फिर हमारा वेरिएबल होगा, वो जो केस पे जंप करना चाहेगा डायरेक्टली वहां से जंप करेगा। जैसे कि 2 पे जंप करना है, 1 पे जंप करना है, इट विल डायरेक्टली जंप ऑन टू दैट स्टेटमेंट, राइट, 3 पे। अगर इन सब में से कोई भी सही नहीं है तो वो एन पे आएगा या फिर डिफॉल्ट में आएगा। ओके, एन तक केसेस हो सकते हैं, डिफॉल्ट में आएगा। हर एक के बाद एक राउंड है जो डिनोट कर रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। हर एक ब्लॉक के बाद में क्या लिख रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ओके, कि केस 2 है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। हम प्रोग्राम में देखेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा, पर अभी के लिए थियरी समझ लेते हैं, ठीक है। सो ये है वो क्या है, आप ग्राफ में ये चीज यूज कर सकते हैं, करते हैं जनरली, कि यहाँ से और 3 और n के बीच में काफी सारे दूसरे केसेस हो सकते हैं। यह है वो कंटिन्यूएशन मार्क है, इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन मार्क, कि 3 से लेके n के बीच में डॉट 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 लाइन्स है, यानी कि काफी सारे केसेस हैं जो उसके बीच में आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। सो अगेन स्विच स्टेटमेंट के पहले भी काफी सारा पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ हो सकता है और बाद में भी पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ हो सकता है। ओके, वो अपने तरीके से एग्जीक्यूट होगा, हम सिर्फ स्विच स्टेटमेंट का फ्लो डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है। सो ये सब चीजों के लिए आई मीन प्री असाइंड है कि प्रोग्राम वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के पहले भी हो सकता है और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के बाद भी हो सकता है। बहुत ऑब्वियस है क्योंकि हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो पर्टिकुलर टॉपिक है, तो कोई पूरा सी प्रोग्राम नहीं है, फाइन। सो ये चीज हम ऑलवेज माइंड में रखेंगे, वो उसके हिसाब से ही चलेगा, उसका कोई भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर हम मैं ब्रेक लिख रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ कि वो प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा, तो वो प्रोग्राम के बाहर नहीं आएगा। आप स्विच स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देख सकते हैं, उनके बाहर चला आएगा। ओके, उसका फ्लो स्विच स्टेटमेंट के बाहर चला आएगा। क्लियर है। सो अंडरस्टैंड द स्विच स्टेटमेंट, सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम है, विल जस्ट सी दैट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड this and if you have any doubts you can let me know. Thank you. Greetings of the day, students. Last time we were here discussing flow of the switch statement and its syntax, how it is being written in C program. Okay, so हर एक switch statement में different cases होते हैं। Case is a keyword. मैं quickly repeat कर देता हूँ। Switch keyword लिखेंगे, switch keyword के अंदर एक variable name लिखेंगे या फिर पूरी condition लिखेंगे कि जो condition में check करनी है, जिसके different answers हो सकते हैं। उस एक एक आंसर को हम केस बनाएंगे, ठीक है। तो केस कीवर्ड है, केस के बाद स्पेस लिखेंगे, स्पेस के बाद जो उसका पॉसिबल आंसर है वो लिखेंगे, फिर कॉलन, कॉलन के बाद कुछ एक स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आएंगे, उसमें कोई भी कर्ली ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं है, और बाद में ब्रेक लिखेंगे। ब्रेक क्यों लिखेंगे कि एक केस यहाँ पे खत्म हो रहा है और आपको वहां से ब्रेक करके डायरेक्टली आपको कहाँ जाना है, स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाना है, उसके नेक्स्ट का जो प्रोग्राम है वो आपको कंटिन्यूस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करना है। we mean that by switch statement. अब switch statement में हम एक प्रोग्राम करने वाले हैं, तो कौन सा प्रोग्राम है, सिंपल कैलकुलेटर प्रोग्राम। ओके, ये हम लिखेंगे फॉर यूजर, राइट। सो आई जस्ट स्विच टू द कोड ब्लॉक्स टैब। कोड ब्लॉक्स टैब में ऑलरेडी पुराना वाला प्रोग्राम है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। I'll close this project. It asks me if I want to save. No, I don't want to save. I had saved the project earlier. I'll create a new project. ओके, न्यू प्रोजेक्ट में देख लेंगे ध्यान से कंसोल एप्लीकेशन, जैसे हम करते हैं। कंसोल एप्लीकेशन के बाद सिंपल सी प्रोग्राम, आई वांट टू राइट सी प्रोग्राम, नॉट C++ प्रोग्राम। देन आई विल टाइटल इट एज लेट्स से स्विच स्टेटमेंट। ओके, स्विच स्टेटमेंट।
next, and compiler settings are not to be changed, finish. Okay, so as you can see, our project is here named switch statement and we'll open main.c file. ओके काफ़ी सारे लोगों के मुझे अभी भी मैसेजेस आ रहे हैं, वो लोग मिस्टेक कर रहे हैं कैसे सी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं कोड ब्लॉक्स में. सो शो सी द फर्स्ट वीडियो वेयर आई एम क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट इन कोड ब्लॉक्स और मूविंग टू कोड ब्लॉक्स वीडियो. ओके, सो हमारा काम है कैलकुलेटर क्रिएट करना. सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे. इंटीजर a, b, दो इंटीजर लेंगे यूजर्स से. और अगर a और b इंटीजर हैं तो ऑब्वियसली एडिशन, ये सारे वेरिएबल्स हम बाद में ऐड करेंगे. चलो ओके, सो a b हमने डिफाइन कर दिए हैं. यहाँ पे I will increase the size of the fonts first, so you get that, you can see. मैं मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ. क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि enter the value of a and b, right? You want to enter the value of a and b. a and b की हमें वैल्यू एंटर करनी है. ये सिर्फ मैसेज है. printf scanf हम ध्यान से पढ़ चुके हैं. सो रिवाइज इट और हम दो वैल्यूज लेंगे, %d स्पेस %d कॉमा $sign a कॉमा $sign b. यहाँ पे %d के बाद में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रखेंगे, यहाँ पे पहले भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं रखेंगे. अगर आप दो स्पेस छोड़ रहे हैं तो फिर जब आप वैल्यूज एंटर कर रहे हैं तो उनके बीच में दो स्पेस छोड़िए. ओके, अगर एक्स्ट्रा स्पेस रखेंगे तो आपका प्रोग्राम रन होने में दिक्कत होगी, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. ओके, सो ये चीज हम माइंड में रखेंगे. %d सिंगल स्पेस एंड %d कोड्स कंप्लीट, ये फॉर्मेट ध्यान में रखेंगे. अगर इसके बाद स्पेस रखी है तो जब आप वैल्यूज एंटर कर रहे हैं तभी भी आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू स्पेस सेकेंड वैल्यू के बाद अगेन स्पेस एंड देन एंटर. तो कंप्यूटर को पता चलेगा कि वैल्यू कैसे लेनी है. ओके, आई एम नॉट गिविंग स्पेस राइट नाउ. मूविंग फॉरवर्ड, अब यूजर से उसकी चॉइस लेंगे. तो मुझे एक एक्स्ट्रा वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, चॉइस. ओके, चॉइस के लिए मैं कुछ प्रिंटफ स्टेटमेंट्स आगे प्रिंट कर देता हूँ. प्रिंटफ, ओके, प्रिंटफ में मैं क्या लिख रहा हूँ, दिस इज calculator program. Okay, this is a calculator program. I'll put it in new line. Okay, ये calculator program है और मुझे क्या क्या लिखना है चीजें कि press 1 for addition and I'll say /n और मैं इस चीज को कॉपी कर लूंगा, paste it here, paste it and paste it. We'll perform 5 operations. So I'll quickly change 2 for something, 3, 4 and 5. ओके, एडिशन के बाद मैं किसके लिए लूंगा, आज से सब्ट्रैक्शन के लिए 2 प्रेस. ओके, आई विल टेक द वेरिएबल एज 2 लूंगा. फिर मैं आई विल से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. ओके, एंड देन आई विल से डिवीजन. ओके, एंड देन आई विल से मॉड्यूलो. ओके, सो 5 ऑपरेशंस हैं. मैंने उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई. दिस इज कैलकुलेटर प्रोग्राम. कैलकुलेटर प्रोग्राम है ऐसा दिखाने के लिए हम उसके आसपास इस तरीके से कुछ साइन कर देते हैं. ठीक है, ताकि प्रोग्राम दिखने में थोड़ा अच्छा लगे. यू कैन अवॉइड दिस और राइट दिस, बट इंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है यूजर के लिए. बाद में मैं उसको बोल रहा हूँ एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो 2-3 लाइन उसके पहले छोड़ देते हैं ताकि पता चले कि ए और बी की वैल्यू एंटर करनी है. ए और बी की वैल्यू लेने के बाद मैं चॉइस की वैल्यू लूंगा. सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ. ओके, you have to write this. Okay, you don't have to skip and copy this. Enter the value of choice. Okay, choice यानी वो बताएगा कि उसको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, by entering that number. और मैं उसकी वैल्यू कहाँ स्टोर कर दूंगा, चॉइस में स्टोर कर दूंगा.
फाइन। फिर हम स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देख लें, स्विच कीवर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ और हमारे केसेस कितने बनेंगे या कौन से केसेस होंगे, यूजर की चॉइस के हिसाब से हमारे केसेस होंगे। इसके अंदर मैं वेरिएबल लिख रहा हूँ चॉइस, ओके, जो वेरिएबल नेम है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। फिर मैं स्विच का ब्लॉक बना रहा हूँ, स्टार्टिंग स्टेटमेंट, एंडिंग स्टेटमेंट। स्विच के बाद मैं कोई भी सेमी कॉलन नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये हेडिंग है, इफ एल्स है, मेन है, ये सब हेडिंग होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं, ये हमारा ब्लॉक है। ब्लॉक के अंदर हम केसेस क्रिएट करेंगे। केस कौन सा है, सबसे पहले कि चॉइस की वैल्यू 1 आ सकती है। सो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज आएंगी जो वेरिएबल ले सकता है या फिर एक्सप्रेशन ले सकता है। सो अभी चॉइस की पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है, तो मैंने 1 लिखा हुआ है, इंटीजर है, ओके, केस 1। एंड देन आई कैन से दैट सेमी कॉलन, केस स्टार्ट हो रहा है, केस स्टार्ट हो रहा है तो मैं, ओके, इफ आई एम स्टार्टिंग माई केस फ्रॉम हियर, सो मुझे क्या करना है, उसके अंदर एडिशन करना है 1 के लिए। सो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ ऐड, जो अभी ऊपर डिफाइन करना बाकी है। उसके अंदर मैं a प्लस बी का एडिशन करूंगा और उसे प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या लिखूंगा, एडिशन ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। ओके, 3 वेरिएबल मैंने दिए हैं, a और b का एडिशन है वो क्या आएगा, एड नाम के वेरिएबल में स्टोर है, ओके, एडिशन ऑफ a एंड b इज दिस, ऐसा मैंने प्रिंट किया हुआ है। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट इट शुड ब्रेक द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, इसलिए मैं ब्रेक यूज कर रहा हूँ। ब्रेक एक कीवर्ड है, जो भी ब्लू कलर में है वो सारे कीवर्ड है। ब्रेक एक कीवर्ड है जो प्रोग्राम को स्विच स्टेटमेंट के बाहर निकाल देगा, तो कोई भी एक केस एग्जीक्यूट करेगा, एक से ज्यादा केसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर मैं दूसरा केस लगा रहा हूँ, केस 2, ठीक है। केस 2 में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो एस यू बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी, फाइन। एंड देन प्रिंट एफ के अंदर ये सेम स्टेटमेंट आएगा। सो आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट, कॉपी एंड आई जस्ट पेस्ट इट हियर, ओके। यहाँ पे मैं एडिशन की जगह पे क्या यूज करूंगा, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन यूज करूंगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी, and then I'll use sub variable here because obviously हमारे वेरिएबल का नाम अब क्या है, sub, and then I'll break the flow of the program। ध्यान रखिए, एक एक केस हम डिफाइन कर रहे हैं, लास्ट में ब्रेक लिख रहे हैं, वो एक एक केस का आप देख सकते हैं, एक खुद का एरिया है, ये केस 2 का एरिया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ब्रेक पे खत्म हो रहा है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग सबके हम समझते जाएंगे, ओके। एंड देन सिमिलरली आई हैव केस 3, केस 2 को पूरा आई जस्ट कॉपी इट एंड देन आई एंटर इट एज केस 3, नेसेसरी चेंजेस करूंगा, ओके। यहाँ पे आएगा MUL फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड देन आई विल यूज इट एज मल्टीप्लिकेशन, ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस एंड दिस इज समथिंग, सो आई विल ट्राई MUL हियर। अगेन हमें ऑपरेशन में चेंज करना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, a into b आएगा, ओके, एंड देन ब्रेक, यस, सो दिस इज ओके। एंड फोर्थ आएगा हमारा डिविजन, ओके। सो हम उसको लिखेंगे div को a डिवाइड बाई b। हम a डिवाइड बाई b लिखते हैं तो उसके आगे क्या लिखते हैं, ऑब्वियसली फ्लोट लिखते हैं, क्योंकि a और b दोनों क्या है, इंटीजर है। तो हम एक्सटर्नल टाइप कन्वर्जन करते हैं, ओके, एक्सटर्नल लिखते हैं। सब्ट्रैक्शन की जगह पे हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट डिवीजन, और डिवीजन होगा a एंड b वो इंटीजर है, और फिर डिवीजन क्या होगा, फ्लोट आएगा, परसेंटेज है, और हम उसको div लिखेंगे। ये सारे वेरिएबल्स जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो अभी डिक्लेयर करने बाकी है, जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो पहले डिक्लेरेशन होना चाहिए, पर मैं पहले क्रिएट कर दे रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। लास्ट ऑपरेशन बाकी रहा मोड, उसको हम एज एन परसेंटेज डिनोट करते हैं। उसको क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ a एंड b इज परसेंटेज d, वो सब इंटीजर ही होता है, सो मैं उसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको मैं मोड ही लिख रहा हूँ। लास्ट में ब्रेक, ओके। और डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है, उसको हम डिफॉल्ट लिखेंगे, ओके। डिफॉल्ट क्या हो सकता है, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं आएगा, वो लास्ट स्टेटमेंट है, उसमें मैं सिर्फ printf लिखूंगा। printf क्या लिखूंगा कि आपने जो चॉइस एंटर की है वो कोई भी सही नहीं है, सो यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग चॉइस, ओके, सिंपल। और यहाँ पे मेरा प्रोग्राम खत्म हो रहा है, देन आई हैव रिटर्न 0।
मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन बाकी है, so I'll just quickly go up and declare my variables a b choice. Okay, then I have add, then I have sub, then I have multiplication, division इसमें नहीं रखूंगा, mod I am putting it inside, and then I'll declare variable float div. Okay, मेरा प्रोग्राम एकदम रेडी है, कंपाइल्ड है. I'll just quickly run it and check if there are any errors or warnings. Fine, simple, nice and neat program. This is a calculator program. 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, 4 for division and 5 for modulo. ये इंस्ट्रक्शन है. इंस्ट्रक्शन के बाद क्या पूछ रहा है मुझे, ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है. तो ए बी की मैं वैल्यू एंटर कर रहा हूँ 32 और 56. ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ चॉइस. मुझे चॉइस देने को मुझे क्या परफॉर्म करना है. सो मैं सबसे पहले क्या परफॉर्म करता हूँ, लेट्स से सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता हूँ. सो सब्ट्रैक्शन ऑफ 32 एंड 56 इज -24 आ गया. एक बार प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ. लेट्स परफॉर्म डिविजन. सो आई से ए और बी की वैल्यू है 18 और 36 और बाद में वो जो चॉइस पूछेगा, चॉइस में डालूंगा 4, दैट इज डिविजन. डिविजन इज 0.5. ओके, 18 और 36 का डिविजन क्या आएगा, 0.5. Similarly, you can run for every other thing. मैं 15 और 4 के लिए रन करता हूँ और इस बार मैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, लेट्स से मॉड्यूलो ऑपरेशन. सो मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म मुझे रिमाइंडर देगा, 4 3 12 और 3 रिमाइंडर. मोड ऑफ 15 एंड 4 इज 3. ये हमारा आंसर है. ओके, सो यू कैन ट्राई दिस प्रोग्राम. सिंपल स्विच स्टेटमेंट है. इंपॉर्टेंट चीज है इसका सिंटैक्स समझना कि स्विच है, स्विच के बाद में अंदर वेरिएबल है. वेरिएबल जो भी वैल्यूज ले सकता है वो एज अ केस आएगी. वेरिएबल यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3 इस तरीके से ले सकता है, तो वहाँ पे वो वैल्यूज आएंगी. अगर हम कुछ चेक कर रहे हैं अंदर, जैसे कि स्विच में हम ऑड इवन वाला प्रोग्राम लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं, लेट्स से मेरे पास नंबर नाम का वेरिएबल है. सो मैं क्या चेक करूंगा, नंबर मॉड्यूलो 2 डबल इक्वल्स टू 0. तो ये जो एक्सप्रेशन है वो दो वैल्यूज ले सकता है, ट्रू एंड फॉल्स. तो मेरा केस कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा. केस की एक वैल्यू आएगी ट्रू और दूसरी वैल्यू आएगी फॉल्स. ओके, ट्रू एंड फॉल्स दो वैल्यूज आएंगी. उसके अंदर मैं रिलेटेड प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखूंगा कि नंबर इज इवन और नंबर इज ऑड. तब ये इसकी जरूरत नहीं है, पर अभी हमारा प्रोग्राम वो नहीं है, इसीलिए आज मैं स्विच टू अ नॉर्मल प्रोग्राम दैट इज ऑफ चॉइस. ओके, तो इसके अंदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं और वेरिएबल भी हो सकते हैं. ये हमारा सिंपल स्विच स्टेटमेंट प्रोग्राम है फॉर कैलकुलेटर. ओके, ट्राई टू रन दिस एट होम बाय योरसेल्फ. राइट, थैंक यू.